Yeah, good morning, class. So last week we had done Morning, rake sir. of stem and rake of keel. So rake of stem Good was the morning, sir. departure from the vertical of any line in the profile in the vertical vessel stem, Good morning, and sir. rake of keel, yeah, good morning, was a departure from the horizontal in the profile near the stem region. And both these were helping maneuverability and speed. I will just show you those diagrams again, and then we'll continue for the next. So the rake was the departure from the vertical of the stem. So this is the departure, that angle is departure of the from the vertical of the stem. If it is in the right hand side, then it is positive. It is left hand side, then it is negative. Now certain US Navy ships have got a negative rake for avoiding radar detection. Then your keel rake is the departure from the horizontal. So this is the horizontal line. How much is the departure of that angle which the forward section of the keel is making? So the barge will not have any stem rake or keel rake, and a fast boat will have maximum stem rake and keel rake. So this is the maximum stem rake and keel rake which a fast boat will have, and barge will not have any stem rake and keel rake. Another diagram I'll show you. Now if you see a VLCC or VLOC will have less stem rake, it have less keel rake. A general cargo ship will have more stem rake than the VLCC, and container ship will have furthermore. And container ship will have flare also, which the flare will not be there much in a general cargo or a VLCC. A naval vessel will have a more stem rake than the container vessel because the speed is required is more. A fast boat will have more stem rake and more keel rake for having better speed because they can go up to 45 knots. A barge will have zero stem rake because it is a box shaped structure, so it will not have any stem rake or keel rake. So the keel rake, as I said, the stem rake basically is the departure from the vertical, as I said, of the stem in the ship's profile. Keel rake is the departure from the horizontal or the front end of the keel, this one. So this one is your negative stem rake found on stealth ships in US Navy. सर एक क्वेश्चन तो था। बोलो। सर ये तो अपन ने इसके पॉजिटिव पार्ट की बात कर ली, बट कुछ ना कुछ हाँ, नेगेटिव पार्ट ही होता होगा कि सभी शिप्स नहीं रखते हैं उसको। नेगेटिव स्टीम में अभी तुमको नेगेटिव कील रेक दिखा देता हूँ एक्चुअल फोटोग्राफ्स में। नहीं नहीं सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि सभी शिप क्यों नहीं रखते हैं? कुछ ना कुछ नेगेटिव पार्ट भी होगा ना स्टेम रेक और कील रेक का। देखो ऐसा है कि हर शिप नहीं रखता है, क्योंकि अगर वो बल्बस बॉ हो जाता है तो उसको कील रेक रखने की जरूरत नहीं। बल्बस बॉ हो गया तो कील रेक की जरूरत नहीं है। ओके सर। सो पुराने जहाज जो थे उनमें ज्यादा कील रेक होता था। स्टेम रेक तो अभी भी है, बट कील रेक जो है आजकल बल्बस बॉ आ गए, उनमें कील रेक नहीं है। सो दैट इज द रीजन। पुराने जहाजों में कील रेक था, अब नहीं है। मैं आपको वो दिखा देता हूँ व्हाट इज नेगेटिव स्टेल्थ शिप्स हैं, उनके जरा फोटोग्राफ दिखाता हूँ तो आपको पता लगेगा कि नेगेटिव
स्टेम रेक क्या है? अब ये जहाज देखो, इसका स्टेम रेक देखो कहाँ है, देख लिया? कहाँ स्टेम रेक इसका है? ये सर पीछे की तरफ है, ताकि रडार में बाउंस नहीं करे, वापस ऊपर की तरफ जाएगा। इधर भी देखो स्टेल्थ शिप्स है। तो ये स्टेल्थ शिप्स हैं, इंडियन नेवी के नहीं है, ये अमेरिकन नेवी के हैं। ये रडार, अब ये देखो, ये नॉर्मल ये पीछे जा रहा है शिप, इसका रेक देखो पॉजिटिव है, ये वाला शिप फ्रिगेट जा रहा है, बट ये वाला शिप है इसका नेगेटिव है। ऐसे देखो ये सारे हैं, किसमें ज्यादा है किसी में कम है, इसमें बहुत ज्यादा है इसमें कम है। सो इट इज डिपेंडिंग ऑन किस टाइप के स्टेल्थ शिप्स हैं। ये सारे आपको अमेरिकन नेवी के शिप्स मिलेंगे जो स्टेल्थ शिप्स है। इंडियन नेवी में अभी स्टेल्थ शिप्स बनाए नहीं है, इस टाइप के शिप्स अभी इंडियन नेवी ने नहीं बनाया। तो तो सर ये ये रडार स्टेल्थ पे शिप, रीड नहीं होते हैं? हाँ रडार पे रीड नहीं होते हैं सर ये? नहीं, रडार में नहीं आएगा, क्योंकि रडार में जब ये आएगा ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, इसके रेस, रडार की रेस इधर आएंगे वापस नहीं आएंगे, उल्टी डायरेक्शन में ऊपर चले जाएंगे। प्लस इसके ऊपर अब्जॉर्बेंट मटेरियल होता है जो रडार वेव्स को ऑब्जॉर्व कर लेता है, तो वापस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। सो ये स्टेल्थ शिप्स है, ठीक है? तो ये आपके स्टेल्थ शिप्स है। अब इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि ये आपके कोर्स में नहीं है, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बताया। ये सारे आप बाद में आराम से देख सकते हो इनके वीडियोस कि क्या चीज़ है। ओके, नाउ वी कम टू पैरेलल मिडल बॉडी। पैरेलल मिडल बॉडी, जब ये अगर आप शिप को ऊपर से देखो, बर्ड्स आई व्यू, तो शिप इस टाइप का दिखता है। बर्ड्स आई व्यू में अब आपको दिखाएं पैरेलल बॉडी ऑफ शिप, आपको इसमें भी दिखाया था। अब ये देखो, ये टैंकर है, तो इसका बर्ड्स आई व्यू में इसकी पैरेलल बॉडी ये वाली बॉडी है जो एक बॉक्स टाइप की है, पैरेलल टू ईच अदर। इधर जाके ये मुड़ जाता है, ये एंट्रेंस है, और पीछे का रीजन इसका रन है। सो बर्ड्स आई व्यू में जो आपको व्यू दिख रहा है जो कट कर रहा है वाटर साइड को, दैट इज द पैरेलल बॉडी। द साइड्स ऑफ द हल आर पैरेलल टू ईच अदर। दूसरा एक आपको और दिखाते हैं।
इसमें नहीं आ रहा, बर्ड्स आई व्यू में आएगा जो आएगा। अब यूएलसीसी देखते हैं, अल्ट्रा लार्ज क्रूड कैरियर्स। यूएलसीसी में कुछ आ रहा है, ये है एरियल व्यू। अब यहाँ देखो इसका व्यू है, ये पैरेलल बॉडी है ये वाली, ये जो पैरेलल टू ईच अदर। और इसके बाद ये जो एरिया आता है ये आपका एंट्रेंस आता है, फॉरवर्ड एरिया, और पीछे का रीजन आता है रन। ये आपको एक्चुअल फोटो दिखाया है, अब आपको डेफिनेशन दिखाएंगे व्हाट इज पैरेलल बॉडी। तो ये वाली जो बॉडी है इज पैरेलल बॉडी। आगे का पोर्शन होता है एंट्रेंस और पीछे का पोर्शन होता है रन। So it is the length over which the amidships cross section area of the vessel remains constant in magnitude and shape. So that is why it is known as parallel middle body. Fine lined vessels के little और no parallel body होते हैं, वो एक अलग डायग्राम से मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे यॉट का पैरेलल बॉडी नहीं होता, उसका एंट्रेंस रन ही होता है, और बार्ज का सिर्फ पैरेलल बॉडी होता है, एंट्रेंस रन नहीं होता। अभी आपको डायग्राम से दिखाऊंगा। So full form vessels have amidships area remaining constant over some length and have larger parallel middle bodies. So I'll just show you the other parallel middle bodies. अब ये देख लो VLCC या VLOC में पैरेलल बॉडी कितनी बड़ी है। दिस द एंट्रेंस, दिस द रन। कंटेनर शिप में पैरेलल बॉडी इससे कम होगी, इट्स अ मीडियम पैरेलल बॉडी, दिस इज द एंट्रेंस, दिस इज द रन। नेवल वेसल में पैरेलल बॉडी जो है छोटी हो जाएगी, बिकॉज इनको स्पीड चाहिए, तो आगे का एरिया ज़्यादा बड़ा है एंट्रेंस, पीछे का एरिया रन है। और फास्ट बोट में बिकॉज देयर इज नो अकोमोडेशन, यू हैव नो पैरेलल बॉडी, सो यू हैव ओनली एंट्रेंस एंड रन। और जो आपका बार्ज है उसमें ओनली पैरेलल बॉडी होगी विथ नो एंट्रेंस एंड रन। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है डायग्राम पे? एनी क्वेश्चंस ऑन दिस डायग्राम? नहीं सर। नहीं है ना, क्लियर समझ आ गया ना पैरेलल बॉडी क्या है? तो ये आपको एक्सप्लेन, जो ये Yes, sir. वाली बॉडी है इसको कहते हैं फुल फॉर्म बॉडी। फुल फॉर्म बॉडी ये वाली है। और जो आपके वेरी जो ये एक और वर्ड आया था अभी आपका, फाइन लाइंड वेसल। तो फाइन लाइंड वेसल जो है विल बी दीज। इसमें ब्लॉक कोफिशिएंट बहुत कम होता है, यॉट है 2 है 3 है, तो ब्लॉक कोफिशिएंट होता है एक ब्लॉक से हमने कितना मटेरियल यूज किया और कितना वेस्ट किया। जैसे एक बार्ज में एक लकड़ी के टुकड़े से बनाए तो उसमें ज्यादा मटेरियल यूज हो जाएगा, तो उसका ब्लॉक कोफिशिएंट 1 है। VLCC का ब्लॉक कोफिशिएंट 0.85 तक चला जाता है, ULCC का 0.89 आ जाता है, क्योंकि ज्यादातर पुर हमने यूज किया फुल मटेरियल। लेकिन इनमें हमारा ब्लॉक कोफिशिएंट कम हो जाएगा। ये ब्लॉक कोफिशिएंट आप पढ़ोगे स्टेबिलिटी में, लेकिन अभी आपको कंसेप्ट बता दिया ब्लॉक कोफिशिएंट क्या है। ब्लॉक कोफिशिएंट का मतलब एक और आपको डायग्राम से समझा देता हूं। सपोज आपका एक लकड़ी का ब्लॉक है, ठीक है, ये लकड़ी का ब्लॉक है और मैंने इससे शिप बनाया। तो मैंने कितना मटेरियल यूज किया इसको बनाने में? टोटल मटेरियल यूज किया तो ब्लॉक कोफिशिएंट 1 है। अगर मैंने पूरा एक ब्लॉक बना दिया, बार्ज बना दिया इसका, तो ब्लॉक कोफिशिएंट 1 है। सपोज मैंने एक शिप बनाया इसका
और यहाँ से इसको लेके मैंने ऐसे घुमा दिया, तो मैंने इसमें ज़्यादातर एरिया को वेस्ट कर दिया और ब्लॉक कोफिशिएंट मेरा कम हो जाएगा। तो मैंने अगर पूरा ब्लॉक यूज़ किया तो ब्लॉक कोफिशिएंट 1 है, और कम यूज़ किया तो ब्लॉक कोफिशिएंट कम हो जाएगा। जैसे फास्ट बोर्ड का 2.3, 0.2, 0.4 ऐसे होगा, आपका जनरल कार्गो का 0.6 हो जाएगा, कंटेनर वेसल का 0.7 हो जाएगा, उसके ऊपर चलता जाएगा। तो जैसे जैसे आप कितना मटेरियल यूज कर रहे हो शिप को बनाने के लिए उस ब्लॉक से, दैट इज ब्लॉक कोफिशिएंट। बाकी आप तो उसमें स्टेबिलिटी में इसके फॉर्मूले सब याद रखोगे, बट टू हैव द कंसेप्ट व्हाट इज ब्लॉक कोफिशिएंट वो बता दिया। सो एंट्रेंस जो है आगे का पोर्शन है, इज द सबमर्ज्ड बॉडी फॉरवर्ड ऑफ द पैरेलल मिडल बॉडी। इस एरिया के आगे जो सबमर्ज्ड एरिया है दैट इज द एंट्रेंस, जो bow region है which is submerged, forward of the parallel body is entrance, and aft of it, aft of the parallel body, the submerged body is run. Okay, so now we come to the next concept which is known as half siding of keel. अब इसका डायग्राम जरा मैं आपको पहले बता दूं क्या है, डायग्राम से समझाता हूं and then we'll come to the definition. Sir, in mail you will send the diagram also. Then come back again. What did you say? Sir, I in didn't. mail. Sir, अभी in mail. आपका I have not got your email ID as yet. जब तक आपका कोऑर्डिनेटर Okay, मुझे sir. email ID भेजेगा ना, I cannot send you mail because I don't have your mail IDs now. So your coordinator संजीव has, After. संजीव ने भेजा नहीं मुझे अभी email ID. Okay, sir. Okay. Sir, after you संजीव, get the mail, you will send us the diagram also, or just the definitions, or the parallel slide, the I slide will that you're use running. the diagrams of the PPT, not my diagrams. My diagrams are mine. If you want to take a snapshot, you can take a screenshot now. My diagrams I'm not going to send. I will only send the PPT diagrams. Okay? Copy, sir. अगर आपको देखना है तो उसको आपको स्क्रीनशॉट ले लो, आपको वैसे भी वीडियो मिल जाएगा। तो क्लास में जो वीडियो है दैट यू कैन सी आफ्टरवर्ड्स, क्लास वीडियोस ऑफ Yes, sir. MST you will get, so you can see those diagrams there also. If you want to take it for your own self, you can take screenshots of what I am showing on your screen now. Okay? Yes, sir. Now, you know, you have been on your कोई ड्राई डॉक में गया कि नहीं अभी तक? ड्राई डॉक में गए हो कि नहीं अभी तक? नहीं, अभी सिर्फ सुना है। नहीं सर, गए गए हो तो बेटा जब ड्राई डॉक में जाते हो तो कील के ऊपर बैठते हो, कील ब्लॉक्स के ऊपर जहाज बैठता है, पानी ड्रेन हो जाता है, पंप आउट हो जाता है यस सर, ड्राई डॉक में, तो यू सिट ऑन द कील ब्लॉक्स। तो सपोज ये शिप है और शिप के नीचे जो कील है, आई एम नॉट टॉकिंग कील ब्लॉक नो, ये वाला कील है, तो कील के अगर ब्रेथ जो है दैट इज 2x है, और ये सेंटर लाइन ऑफ शिप देख लिया, और ये रेड वाला इज द कील ब्लॉक। तो मुझे क्या करना है कि मुझे अपने कील को, उसकी सेंटर लाइन को इस ब्लॉक की सेंटर लाइन के ऊपर लगाना है। अगर मेरा अलाइनमेंट गड़बड़ हो गया तो आई कैन टर्न टर्टल, आई कैन कैप्साइज, द वेसल कैन कैप्साइज हियर ऑन द कील ब्लॉक, बिकॉज अगर आपने प्लेस नहीं किया तो गिर जाओगे, क्योंकि आपके पास वाटर प्रेशर तो है ही नहीं। तो इसीलिए आपको अलाइन करना पड़ता है, और उसके लिए हाफ साइडिंग ऑफ कील, ये आपका डेफिनेशन है। तो बेसिकली अगर x है हाफ साइडिंग ऑफ कील, दैट मींस 2x is your breadth of the keel, so half siding of keel will be x, so that has to coincide with y. That means this center line should coincide with this center line,
so that you are in place on the dry dock. I'll show you one more diagram. Now this is your blocks in the dry dock. So your ship should be placed at the center line of the dry dock blocks. So your keel block, which is red here, should be, the center line of that should coincide with the center line of the dry dock block. So here the dry dock block breadth is 2y and the breadth of your keel is 2x. So half siding of keel will be either the port side or the starboard side half breadth. We should know this half breadth so that the divers can align your vessel with the dry dock block. If it is not aligned, the vessel will topple. Because अभी पानी नहीं है इसमें, कैप्साइज तो नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे टॉपल ऑफ, क्योंकि अब पानी के बगैर ये सपोर्ट हो रहा है। कंसेप्ट समझ आया कि नहीं आया? Have you understood this concept? बिल्कुल डेफिनेशन से समझ नहीं आएगा, इस डायग्राम से आपको ज्यादा समझ आ जाए। समझ आया कि नहीं क्या हाफ साइडिंग मैं बात कर रहा हूँ? आ गया सर, आ गया ना? ये डायग्राम बेटर है, ये सब डायग्राम मैंने बनाया, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो समझने के लिए, क्योंकि जो पीपीटी के डायग्राम से या किताब के डायग्राम से आपको समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, वापस पीपीटी पे आता हूँ। So half siding is a horizontal flat portion, half breadth of the keel plate attached to the bottom shell plating, measured from port to or starboard of the port. 1 second sir. हाँ, क्या कह रहे? हाँ, क्या कहा बेटा? आप रिपीट कर दो। आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी, कांट हियर यू। आवाज नहीं आ रही है आपकी, नेट गया है क्या? आवाज नहीं आ रही। चलिए एक और एक और डायग्राम दिखाएं। थोड़ा जोर से बोला करो बेटा, आप लोग तो मुंह में बात करते हो, ऐसे सुनाई नहीं देता ना, क्लियर बोला करो। क्योंकि अगर क्लास होती तो सामने सुना पता लग जाएगा क्या बोल रहे हो, बट यहाँ तो नेट पे है ना, तो थोड़ा क्लियर बोलो ताकि मुझे सुनाई दे। ओके, ये अगर कील है, पहले बताएं कील क्या होता है। आपको पहले दिखा दें कील क्या होता है, अगर आप भूल भाल गए हो व्हाट इज कील, कील बता देते हैं क्या होता है। सपोज ये शिप बना हुआ है, तो शिप के नीचे कंटिन्यूअस फॉरवर्ड टू आप सेंटर लाइन में कील होगा, ऐसे ये कील होगा। ठीक है, तो ये कील को हम ब्लॉक के ऊपर प्लेस करना है। सपोज ये ड्राई डॉक है, तो मुझे इसके सेंटर लाइन को इसके सेंटर लाइन से मैच करना है, और इसका सेंटर लाइन, सपोज इसका सेंटर लाइन यहाँ है, ठीक है, ये सेंटर लाइन है, तो हाफ साइडिंग ये है, और इसका सेंटर लाइन यहाँ है। अब इसको अगर मैं बिठा दूं तो सेंटर लाइन से तो मिल नहीं रहा है, इसका सेंटर लाइन इधर है, इसका सेंटर लाइन इधर है, मुझे मिलाना है ताकि वो जब इसके ऊपर बैठे और मैंने पानी निकाल दिया, इट विल नॉट टॉपल ओवर। तो हाफ साइडिंग ऑफ कील इज सिर्फ ये सेक्शन, ओनली दिस सेक्शन, ठीक है, ये सेक्शन, ओनली इस आधा सेक्शन, या तो ये या ये। तो मुझे इसको इस सेक्शन से मिलाना है, इसके आधे सेक्शन से मुझे इसके सेक्शन को मिलाना है। तो हाफ साइडिंग ऑफ कील आधा सेक्शन ऑफ कील ब्लॉक है, इसका नहीं, टॉकिंग ऑफ कील ब्लॉक। तो मुझे इसको इसके साथ अलाइन करना है, तो हाफ साइडिंग ऑफ कील मुझे पता होगा, तो डाइवर्स इसको एडजस्ट करा देंगे इसके साथ। अगर मुझे हाफ साइडिंग नहीं पता, मैं इसके साथ एडजस्ट नहीं कर सकता, और शिप में अगर पानी निकाल दिया ड्राई डॉक में, क्योंकि इसके बाद वो प्लेस होगा इसके ऊपर, तो टॉपल ओवर कर सकता है। अब क्लियर हो गया कि नहीं?
यस सर। क्लियर है कि नहीं है? हाँ भाई, Yes, हाँ sir. या ना, क्लियर है कि नहीं भाई? जवाब दिया करो। Clear है, आप लोग sir. तो Yes, sir. Yes, Clear sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. तो हॉरिजॉन्टल फ्लैट पोर्शन जो है, हाफ ब्रेथ ऑफ द कील प्लेट इज अटैच्ड टू द बॉटम शेल, मेजर टू पोर्ट और स्टारबोर्ड ऑफ द शिप्स लॉन्जिट्यूडनल सेंटर लाइन, जो मैंने आपको रेड से दिखाया था. सो इट इज यूजफुल इन ड्राई डॉकिंग. अब अगर मैंने आपको ये डायग्राम दिया होता तो आपको समझ ही नहीं आता, इसीलिए मैंने अपने डायग्राम से आपको समझाया. इसमें कोई आपको इस डायग्राम से समझ नहीं आएगा. What is forward perpendicular? अब बेसिकली फॉरवर्ड परपेंडिकुलर और आफ्ट परपेंडिकुलर होते हैं हमारे स्टेबिलिटी रीजंस के लिए, हमारे शिप कंस्ट्रक्शन रीजंस के लिए. तो पहले आपको डायग्राम बताएं, फिर आपको समझाएं व्हाट इज फॉरवर्ड परपेंडिकुलर. सो ये आपका शिप है ऑरेंज वाला. सो इट इज फ्लोटिंग इन वाटर. ये इसका कील है, यहाँ रडर है, यहाँ प्रोपेलर है और ये रडर स्टॉक है. तो हमारा ये स्टेम है शिप का, और ये सॉल्ट वाटर लाइन है या समर लोड लाइन है जिसपे फ्लोट कर रहा है. तो इस पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर बनाए, जहां वो स्टेम को कट कर रहा है, सॉल्ट वाटर लाइन, दैट इज नोन एज फॉरवर्ड परपेंडिकुलर. So forward perpendicular is a perpendicular drawn at the salt water line or summer load line, which is cutting the stems of the ship. So it's an imaginary perpendicular. It is not actually a perpendicular, imaginary perpendicular. Now what is aft perpendicular? So aft perpendicular is the perpendicular made through your rudder stalk, cutting your summer load line. So that is your aft perpendicular. And the distance between the forward and aft perpendicular is length between perpendicular. So distance between forward perpendicular and aft perpendicular is length between perpendicular. The distance between the extreme forward point and the extreme aft point is length over all, or LOA. So LOA is the distance between the extreme forward point to the extreme aft point at the poop, and this is at the forecastle. Use of LBP is for stability calculations and for ship construction rules, because you have to decide from where you have to place your structures. So that is LBP is used in ship construction rules. And use of LOA is for double banking, because length overall is required when you're coming alongside, or your turning circle is required, so you require LOA. You want to turn around with the help of tugs, so you require LOA because you might touch your jetty. And also for double banking, you require length overall. Please take a screenshot of this. Because for your definition, you have to define. यहाँ तो मैंने use लिखा, but definition अभी आपको कराएंगे. So you have to write the definition, you have to write the use, and you have to make the diagram. अब आते वापस definition पे. So the forward perpendicular is a perpendicular drawn
or the imaginary perpendicular drawn to the water line at the point where the foreside of stem meets the summer load water line. तो यहाँ सपोज ये समर लोड वाटर लाइन है तो यहाँ पॉइंट पे ये बनाया हुआ आर्क परपेंडिकुलर is drawn to the water line through the point where the aft side of rudder post meets the summer load water line. So if you don't have a well-defined rudder post, then arc perpendicular is drawn from the center line of the rudder stalk. Naval vessels का हम छोड़ देते हैं. We will not take up the naval vessels. Use is stability calculations and ship construction rules. Your forward and aft perpendicular, because you have to have what is your stability में आपको MCTC इस तरह कुछ निकालना होता है. फॉरवर्ड एंड aft perpendicular निकालते हो जितने स्ट्रेसेस हैं, बेंडिंग मोमेंट, शेयरिंग फोर्स, ये सब आप फॉरवर्ड aft perpendicular से निकालते हो. अब इस डायग्राम में aft perpendicular ठीक से नहीं है तो आपको समझ नहीं आएगा, तो मैंने आपको डायग्राम से बना दिया समझ. Now what is LOA? Length between perpendicular is LBP. So length between perpendicular is defined as a length between the forward and aft perpendicular measured along the summer water line. So LBP is at summer water line, the distance between forward and aft perpendicular. The use of LBP is for stability calculations and for ship construction rules. ये तो अब आपने प्री-सी में पढ़ा हुआ है. So LBP, अब यहाँ आ गया रजिस्टर्ड लेंथ. बेसिकली जब रजिस्ट्री में कौन सा लेंथ डालते हैं, सो दैट इज रजिस्टर्ड लेंथ. क्योंकि आपके शिप्स रजिस्ट्री होती है, तो जिस जहाँ रजिस्ट्री आपकी होती है उसमें आपने क्या लेंथ लगाई, सो दैट इज रजिस्टर्ड लेंथ. Now what is length on water line? Now the thing is, you will be on various drafts. You will be on winter load line, you will be a tropical load line. तो आपकी length of water line क्या है at the various drafts? So it is the length of the water line, that is whatever the water is cutting, not the length of the ship. Wherever the water is cutting at the various drafts, so the length of water line is the length of the hull which is cutting the water line at the point where the water line is there. So it will not include the total length of the ship because it will be only at the water line. Now why you use length of water line? First is you want to see how much water it displaces at various load lines. So you will also know where the bow and stern waves are because of your water line. You can calculate your ship, your naval architects can calculate hull speed and hull resistance. And you will also require how much amount of bottom paint needed by length of water line. Because उसके नीचे जो bottom paint लगेगा water line के नीचे वो कितना लगेगा. So that is the reason of why you require length on water line. वैसे they don't ask you about length on water line in your questions. I have not seen anyone asking about it, but still you can read about it. अभी तक इसके ऊपर कोई question नहीं आया कि what is length of water line and what is the use of it.
सो ये देखा है कि लेंथ बिटवीन परपेंडिकुलर से ज्यादा है लेंथ ऑन वाटर लाइन, क्योंकि कौन सी वाटर लाइन पे कट कर रहा है. Now what is length overall? So length overall is the maximum length of the ship taken between extremities, that is the forward extreme end at the forecastle, at the point where your mast is, your railing is, कौन से point आगे सबसे आगे, and poop में maximum extremity, that is वहाँ poop की railing कहाँ लग रही है, that is your point. The distance between them is length overall. So it is useful for maneuvering, like berthing, double banking, turning in that basin. There you require length overall. तो लेंथ ओवरऑल यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फॉरवर्ड एंड, दिस लेंथ इज योर लेंथ ओवरऑल. अब आता व्हाट इज बेस लाइन. तो बेस लाइन यहाँ क्या है, जैसे हमारी आपको उनक्लॉज कराया था तो वहाँ आपके चार्ट में बेस लाइन आ गई, लो वाटर लाइन जो था, लेकिन ये बेस लाइन क्या है, यहाँ से हमारे डिस्टेंस मेजर होते हैं, तो हमारी डेप्थ ऑफ शिप सब यहाँ से निकाली जाएगी. तो बेस लाइन क्या होगा, कील के ऊपर वाली पॉइंट को हम बेस लाइन लेंगे. सो इट इज एन इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल रेफरेंस. शेयर एंड बॉडी प्लान जो है, इसको अभी आप छोड़ दो, इसको शेयर एंड बॉडी प्लान आई विल नॉट एक्सप्लेन बिकॉज वो फेज 2 के लिए है. तो ये प्लान्स हमारे लाइंस प्लान होते हैं फॉर शिप बिल्डिंग. यही समझा देते हैं कि लाइंस प्लान होते हैं शिप बिल्डिंग के लिए. दैट इज योर शेयर प्लान एंड बॉडी प्लान. बेसिकली अगर आपको आपने देखा होगा, चलो मैं आपको एक बार दिखा, ये जैसे ये है, ये बेस लाइन है, ये आपका कील है. आपको जरा, आपको जस्ट फॉर योर रेफरेंस आई विल शो यू व्हाट इज शेयर प्लान एंड बॉडी प्लान, क्योंकि आपने वो देखा हुआ है शिप पे एलिवेज में लगा होता है. तो आई जस्ट शो यू सो दैट यू नो कि क्या देखा है. बात पढ़ाने की बात तो बाद में होगी. ये आपने एलिवे में देखा हुआ है, आपके शिप में जब एलिवे में जाते थे ये प्लान लगा होता था. ऐसा कोई प्लान देखा आपने शिप पे? यस सर, देखा है. यस सर, देखा देखा नहीं? हुआ है. यस सर. देखा है, लेकिन कोई अच्छा, बताएगा नहीं ना कि क्या है. आप समझ नहीं आती सर क्या स्क्रीन है. पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा सर. देखा हुआ है. यस सर, देखा हुआ सर. तो ये वाला ऊपर वाला बॉडी प्लान है, ये वाला शेयर प्लान है, और ये वाला हाफ ब्रेथ प्लान है. तो हमारी बेस लाइन ये वाली लाइन है कील के ऊपर. तो यहाँ बेस लाइन से हमारा बॉडी प्लान शुरू होता है, कील के ऊपर वाली लाइन जो है बेस लाइन हो जाएगी, जिसके ऊपर शेयर प्लान है. हाफ ब्रेथ प्लान में आपका बेस लाइन नहीं आएगा क्योंकि ये बर्ड्स आई व्यू है. अब इसके बारे में इतना ज़्यादा आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि अभी आपके कोर्स से बाहर है. ओके सर. तो ये आपका बॉडी प्लान है, तो ये बेस लाइन है जहाँ से आपकी डेप्थ मेजर होती है. ठीक है. सो दिस इज योर बेस लाइन, और ये आपका शेयर प्लान की बेस लाइन है. तो ये दो बेस लाइन, इसकी बॉटम जो पोर्शन है उसको हम बेस लाइन कहते हैं, जहाँ से हमारे सारे डेप्थ्स होते हैं. अब इससे ऊपर मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी आपका फेज 2 तो बहुत दूर है. अभी तो सेकेंड में ही कर लो. So baseline is drawn in shear and body plan, represents an imaginary horizontal reference line. It represents the bottom of the vessel's molded surface to coincide with the top surface
of your flat keel on most straight keel ships. कील के ऊपर वाली लाइन को हम कहेंगे ये चीज। अब आपको जरा दिखा दें, ये आपका बॉटम जो शिप है, इसके नीचे कील है, ये आपका शिप का बॉटम है, ये कील है। इस लाइन को हम बेस लाइन लेंगे, इधर से टैंक के डेप्थ निकालने हैं, कार्गो के लिए वॉल्यूम, कार्गो वॉल्यूम निकालना है, कार्गो वेट निकालना है, तो हमारे बेस लाइन से मेजर होता है, कील के नीचे से नहीं। अंडर कील क्लियरेंस के लिए हम कील लेंगे, बट जो टैंक के अंदर के जो डेप्थ हैं उसको हम बेस लाइन से लेंगे। तो ये लाइन जो है दैट इज योर बेस लाइन। सर ये बेसलाइन जो यूज होती है वो सिंगल हल पे होती है, डबल हल पे भी सेम लेंगे? क्या बेस लाइन का क्या हो गया सर बेसलाइन सिंगल हल और डबल हल पे टैंक डेप्थ निकालने के लिए सेम होगी या अलग होगी? डबल हल के लिए जो बॉटम डीबी है ना, उसके डबल बॉटम के बाहर वो वाली बेस लाइन है, डबल हल के अंदर वाली बेस लाइन नहीं होगी। ओके। क्योंकि वो टैंक टॉप एरिया है, उसको बेस लाइन नहीं लेंगे। सपोज आपका क्वेश्चन अच्छा है, आपने कहा कि बेस लाइन, एक सेकंड इसको मिटा दे, क्वेश्चन में आपने सही कहा, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सपोज ये शिप है, ठीक है, और ये आपका डबल हल हो गया, और ये डीबी हो गया, और ये हुआ डबल हल। तो यहां आपका कील आया, तो हम इसके अंदर से लेंगे, इधर से नहीं लेंगे। ये टैंक टॉप है, हम इधर से लेंगे, ये वाले पोर्शन, कील के ऊपर वाले पोर्शन। तो ये बेस लाइन हुआ, ये नहीं, दिस विल बी बेस लाइन, ठीक है। अंदर वाला टैंक टॉप है, तो बेस लाइन हमारा यहां से होगा, नॉट दिस, राइट। बेस लाइन विल बी फ्रॉम हियर, नॉट फ्रॉम हियर। So basically it is datum line for vertical measurements. तो बेस लाइन आपकी ये वाली बेस लाइन होगी, दिस इज द बेस लाइन, इसके नीचे कील आएगी। Now what is molded depth? So it is the maximum depth of the vessel at the ship side from upper deck to the inner side of the baseline. तो डेप्थ जो आपके डेकलाइन है वहां से इनर साइड ऑफ बेसलाइन, तो जो डेप्थ है दैट इज मोल्डेड डेप्थ, ये जैसे है। तो यहाँ आपका डेकलाइन मार्क है, और ये कील के ऊपर वाली जो लाइन है वो आपकी बेस लाइन होगी। तो ये मोल्डेड डेप्थ आपकी यहाँ तक है, अबव योर कील। एक्सट्रीम डेप्थ आएगी फ्रॉम डेकलाइन टिल बिलो कील। एक्सट्रीम डेप्थ हम लेते हैं फॉर फाइंडिंग योर अंडर की क्लियरेंस। तो एक्सट्रीम डेप्थ हम उसके लिए लेते हैं कि नीचे की क्लियरेंस क्या है। तो सर स्क्रीन पे कुछ शो नहीं कर रहा सर। बेसिकली यूकेसी फाइंड करने के लिए हमें ड्राफ्ट चाहिए होता है। तो ड्राफ्ट, एक्सट्रीम ड्राफ्ट हो गया बिलो योर कील, मोल्डेड ड्राफ्ट होता है एट बेसलाइन, और एक्सट्रीम ड्राफ्ट होगा बिलो कील। तो उसको अगर हम लेंगे, उससे हमारा यूकेसी मिलेगा एक्सट्रीम ड्राफ्ट माइनस योर डेप्थ ऑफ दैट वाटर बॉडी, उसमें हमें अंडर कील क्लियरेंस मिलेगी। तो यहाँ अगर आपने देखा है, सिर्फ आपको चलो डायग्राम की समझा देंगे, डेफिनेशन अगली बार कराएंगे। तो मोल्डेड डेप्थ हो गया डेक से बेसलाइन तक, मोल्डेड ड्राफ्ट हो गया वाटरलाइन से बेसलाइन तक, बेसलाइन के नीचे कील नहीं आएगा। एक्सट्रीम ड्राफ्ट आएगा, कील को भी कील के नीचे तक लाएंगे,
ब्रेथ मोल्डेड होता है इनर प्लेटिंग टू इनर प्लेटिंग, अंदर की प्लेटिंग से अंदर की प्लेटिंग का कितना है। जैसे हमारा कमरा है, तो कमरा जब ले रहे हैं तो ईंट की हम डायमेंशन नहीं ले रहे, तो उसी तरह शिप के शेल की थिकनेस को हम नहीं ले रहे, अंदर से अंदर तक कितना डेप्थ ब्रेथ है वो मोल्डेड ब्रेथ आएगा। एक्सट्रीम ब्रेथ आएगा बाहर से बाहर तक। तो मोल्डेड ब्रेथ हमको चाहिए कार्गो स्पेस के लिए, एक्सट्रीम ब्रेथ चाहिए हमें लॉक के अंदर घुसने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट क्लास में आई विल फिनिश ऑफ योर डेफिनेशंस, देन वी विल स्टार्ट विद स्ट्रेसेस। एंड संजीव को आप रिक्वेस्ट कर दो कि जरा मेल भेज दे आपकी ईमेल आईडी, so I can send you the study material. ठीक है, so we'll take a break. We'll take a break now, and next class we'll continue with your definitions. I will explain your definitions again. Then we'll come to the stresses. Thank you, sir.